Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, we are carrying on with this first chapter in history, rise of nationalism in Europe. First topic we have completed, where we have talked about the revolution that had started in Europe. How it has started from France when it had started, Napoleon and his army had carried on the message of democracy and the message of revolution in the other parts of the world as well. पूरी दुनिया में ये अपना मैसेज लेके जा रहे थे एंड मेनी पीपल वेर गेटिंग वेरी इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स दैट वेर हैपनिंग इन फ्रांस. After these events that were happening in France, other places in Europe were also getting very charged up. They also said when the movements have started, when the revolution had started and such a large scale change is happening, so they must be also involved in these changes. इन सारे चेंजेस में उनको भी अपना नाम रजिस्टर कराना है. For this purpose, the liberal movements that had started, it took a different turn and the various places in Europe we have seen how many principalities and how many small states existed in Europe. In these small states which existed in Europe, there were different kind of people following different cultures, customs, traditions, and the structure that was here, the way they were carrying on their work. Okay, this has been very clearly signified. Political liberalism we talked in the last class, where we talked about a liberal movement which was giving voting rights to the people in Europe. People in Europe, especially the non-property men, जिनके पास property नहीं थी, actually जिनके पास property नहीं थी, and the women, they were the ones who were carrying on the political movement, who were carrying on the political liberalism, a political freedom in a very different manner, where voting rights were required by the people. And another thing that was being carried on here is the economic liberalism. Economic liberalism, when we are talking about 1834 में, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia. इन्होंने क्या किया, क्योंकि remember हमने उस merchant के बारे में बात किया था. We talked about that merchant who is moving from Hamburg to Nuremberg. इतना लंबा डिस्टेंस तय करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एंड टू कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया ने इनिशिएट किया. प्रशिया के इनिशिएटिव पे दिस लिबरल मूवमेंट हैड टेकन प्लेस, वेयर Zollverein was found. It was a custom union, it was a custom tax that the businessmen in Europe who are moving from one place to the other place had to find out. They had to give this. So this is what that was taking place. This is how the nationalism was developing, and in this nationalism, in this nationalistic feeling, the people who were involved into it, they got lot of benefits. So after starting topic 2, we have completed 2 points, 2 topics, that is 2.1, aristocracy and the rise of the new middle class, working population, the people who were working in the industries, the people who were professionals, people who were coming up with new ideas, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबरलिज्म. ये हमने सेकेंड टॉपिक में पढ़ा कि ये लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है. हु वेर द पीपल हु वेर इन्वॉल्व्ड इनटू गेटिंग दिस नेशनलिज्म. 2.1 and 2.2 we have completed. Next topic that we are completing, my dear students, let us understand, that is topic
2.3. What is this topic? This is topic talking about a new conservatism, after 1850. Conservatism. What was conservatism? Conservatism was that concept. Conservatives were those people who had started their conservative regime. Remember 9th class में फिर से जाओ, again go back to class 9. There we had done Russian Revolution में हमने देखा था there were 3 categories in the society: the liberals, the radicals, and the conservatives. So these were those conservatives who did not want any change in the society. They wanted the things to carry on in their own manner. जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए. कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्व, अपने तरीके से अपनी चीजों को चलाने के हकदार, अपने तरीके से अपनी चीजों को कैरी ऑन करने वाले लोग, they were the conservatives, and this is the new conservative movement that started after 1815. Napoleon was defeated in 1815 and European government वहाँ पे क्योंकि अब Napoleon, the kind of revolutionary changes that Napoleon has brought, जिस तरह का बदलाव यूरोप में नेपोलियन लेके आए थे, it was something that was very remarkable. The whole of Europe was talking about it. The whole of Europe was very impressed by it. जो चीजें नेपोलियन ने की, the way Napoleon had carried forward his things, that was the idea जिसमें कि जो कंजर्वेटिव्स थे, they were not very happy. उनको लग रहा था ये नेपोलियन has brought a revolution. Whole of Europe was undergoing change, and under this change there was a spirit of conservatism. Napoleon, 1815 में there was the Battle of Waterloo. In 1815 there was Battle of Waterloo, and Napoleon was defeated in this. 4 nations came together in this Battle of Waterloo just to defeat Napoleon. एक अकेला आदमी कितना उसने यूरोप के लोगों को परेशान कर दिया था, यूरोपियन रूलर्स को उनकी जड़ें हिला दी थी, that they all came together कि नेपोलियन को हराना है, नेपोलियन को हराना है. So this was the Battle of Waterloo and Napoleon was defeated. कंजर्वेटिव्स को बहुत अच्छा मौका मिल गया. नाउ कंजर्वेटिव सेड कि अच्छा, हमारी मोनार्की खत्म की थी, हमारा रूल खत्म किया था, अब सबसे पहले वी विल ब्रिंग बैक आवर कंजर्वेटिव सोसाइटी. यूरोपियन गवर्नमेंट वेर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म को लग रहा था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना चाहिए. The things that had happened in past, जो चीजें पहले खत्म हो गई हैं और जो इतने सालों से चली आ रही हैं, whatever has been carried forward from such a long time, it cannot be finished in one go. एक बार में उसको खत्म कर देना, that was not a correct thing. So conservatives believed कि traditional institutions, conservatives believed in, इनका एक अपना ट्रेडिशनल सोसाइटी था. They believed in traditional institutions, believed in traditional institution of state and society. Got it?
state was there, society was there, and conservatives very much believed in that. Like the monarchy. They said कि monarchy, king's rule is something that existed in the society from the very long back time. इतने पुराने जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है उसको एक बार में कैसे खत्म कर सकते हैं? हाउ कैन पीपल फिनिश द मोनार्की इन वन गो? एक बार में मोनार्की को खत्म करना, दैट्स नॉट करेक्ट एंड दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, द चर्च, द सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली. ओके, सो दे बिलीव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में like monarchy, ठीक है, monarchy was there, church, and social hierarchies. Okay. Now, property and family should be preserved. ठीक है, social hierarchies are there, property and families. मतलब जो बहुत पुरानी चीजें चली आ रही हैं, age old traditional things should be maintained, should be carried forward. Got it? तो ये जो था, that was the mentality of the conservatism. Social hierarchies, property and families should be preserved. कुछ हद तक सही भी थे. नए तरफ हमको बढ़ना चाहिए. We should always move forward towards the new things, accept the changes, but that does not mean that the old system should be completely finished. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि they want to go back exactly. देखो क्या होता है ना कि when you are opposing a person, किसी आदमी को जब आप अपोज कर रहे हैं, किसी इंसान को जब आप अपोज कर रहे हैं, तो उसकी कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो आप नहीं चाहकर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं, आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम, आई एम अगेंस्ट दिस पर्सन. ये सारे जो ट्रेडिशनल्स थे, ऑल दीज कंजर्वेटिव्स एंड ट्रेडिशनल्स, दे वर अगेंस्ट नेपोलियन, बट नेपोलियन, द चेंजेस दैट ही हैज डन, दे लाइक्ड इट, दे appreciated it. Got it? So they did not propose, उस सोसाइटी में प्री रेवोल्यूशनरी डेज में they did not want to go back, rather they realized, इन्होंने ये रियलाइज किया from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. उन्होंने कहा कि मोनार्की एस्टैब्लिश करना है, किंग को लेके आना है, बट किंग शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द चेंजेस इन द सोसाइटी. अब जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट द किंग हैज टू इनकॉर्पोरेट इन हिज सिस्टम. द किंग हैज टू एक्सेप्ट द चेंजेस. कि नेपोलियन हैज कम अप विथ ऑल दीज चेंजेस. सो they in fact wanted, ठीक है, ये यही चीज चाहते थे. they wanted that the society of it should be, that old society should be preserved, and the changes that has been initiated by Napoleon, it could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. They in fact wanted that मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न चीजों का ये विरोध नहीं कर रहे थे, कैन strengthen further the system in society. अपनी सोसाइटी में ये जो सिस्टम लेके आ रहे थे, वो सारे सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से चलेंगे.
that whatever has been initiated by Napoleon ने जो इनिशिएट कराया था वो सारे मॉडर्न चीजों को मोनार्की इस्टेब्लिश करेंगे एंड स्टेट कैन बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव एंड मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न सिस्टम को अब ये सपोर्ट कर रहे थे। कंजर्वेटिव्स थे, पुरानी चीजों को वापस लाना चाहते थे लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। दे वांटेड टू मिक्स इट विथ मॉडर्नाइजेशन एंड द मॉडर्न सिस्टम सो इट कुड मेक स्टेट पावर। मॉडर्नाइजेशन कैन मेक स्टेट पावर मोर पावरफुल। ठीक है, स्टेट पावर जो है वो और भी पावरफुल हो जाएगा, मोर पावरफुल, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। Now, modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom, ये सारी चीजें जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी and because of this the autocratic monarchies of Europe it will strengthen। जो रूलर्स थे जिन्होंने कि मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, the rulers who had said that they will not accept modernization, they have to accept it. So changes होंगे लेकिन उन changes में what all things have to be there? There has to be a modern army, got it? And efficient bureaucracy, and efficient bureaucracy. Now bureaucracy is the system in which the things are functioning, okay? क्या होता है ना, सब स्पेलिंग्स यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। सो ब्यूरोक्रेसी एंड चेंजिंग इकोनॉमिक सिस्टम ना, डायनामिक इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स नीड टू चेंज। अब यहां बदलाव की जरूरत थी, ओके? एंड डायनामिक इकोनॉमी, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, ओके? एंड abolition of feudalism and serfdom, abolition of feudalism, वही किसान वाला जो था, जो फार्मर्स वाला मैंने सिस्टम बताया था, ओके? एंड serfdom. Will strengthen the monarchy. अब क्या हुआ कि monarchical system इसी सब चीजों से strengthen हो जाएगा, इसी सब चीजों से strong हो जाएगा। Now, when this system was being strengthened, efficient bureaucracy आ रहा है, dynamic economy हो रही है, abolition of feudalism है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मोनार्की वापस आना चाहिए, लेकिन दे वांटेड कि नेपोलियन वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। दे वर एक्चुअली नॉट इन सपोर्ट ऑफ व्हाट नेपोलियन हैड डन। नहीं, सपोर्ट था, नेपोलियन ने जो चेंजेस किए उसको सपोर्ट था, लेकिन नेपोलियन हैज रिमूव द मोनार्की, दे वर अगेंस्ट दैट। उस चीज का ये विरोध कर रहे थे। नेपोलियन हैज टोटली फिनिश्ड द मोनार्की सिस्टम एंड अच्छा, मोनार्की सिस्टम खत्म करने के बाद ऐसा नहीं था कि ही वाज सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, ही ब्रॉट ऑटोक्रेसी, ही ब्रॉट हिज ओन सिस्टम, अपना रूल, अपना तरीका। ही वाज लाइक अ टाइप ऑफ अ डिक्टेटर। पूरा डिक्लेयर्ड डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन काफी सारी इनका डिक्टेटरशिप जो था, इट वाज कैरिड ऑन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। नाउ व्हाट हैपेंड?
1850 में 15 में इन द मीन टाइम 1850 में 15 में द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन 1815 ब्रिटेन, देखो इतने सारे पावर्स साथ में मिलके आके इन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया। सो इन 1815 आपको ये कंट्रीज का नाम याद रखना है, ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ओके, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for Europe. इन्होंने एक साथ में मिलकर, सोचो 4 कंट्रीज को साथ में आना पड़ा एक आदमी को हिलाने के लिए। इससे आप नेपोलियन का पावर सोचो, हाउ पावरफुल द पर्सन वाज कि 4 कंट्रीज को साथ में आके बैटल में उसको डिफीट करना पड़ा एंड दे मेट अप एट, उसके बाद फिर सारे लोग मिलके वियना में उन लोगों ने मीट किया एंड दे ड्रू अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। met at Vienna to find a settlement। मतलब आगे भैया अभी तक तो नेपोलियन के हिसाब से सारा कुछ चल रहा था, अब नेपोलियन तो है नहीं, तो दे डिफीटेड नेपोलियन एंड met at Vienna to find a settlement for Europe। अब आगे यूरोप में क्या करना है, what is to be done in Europe। नेपोलियन का साम्राज्य खत्म करना ये तो है। और ये जो मीटिंग था, दिस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। वियना में ये लोग जो मिले थे, वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर Duke Metternich। रिमेंबर द नेम, ड्यूक मेटरनिक ने ये वियना कांग्रेस को हेल्ड किया था एंड यहाँ पे डेलीगेट्स हु वर देयर, दे ड्रू अप दे मेड द ट्रीटी ऑफ वियना एंड ट्रीटी ऑफ वियना, it is also called as Vienna Congress। Treaty of Vienna was signed all with the object of undoing most of the changes that came about in Europe during Napoleonic War। Okay, Vienna was signed and all the changes done by Napoleon was to be undone। वापस से इनको वैसे ही लेके आना था। It was to be undone, it was to be redone and सबसे पहली चीज इन्होंने क्या की, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कि क्या क्या चीजें इसमें डिसाइड हुई, what were the decisions taken by the emperors, taken by the rulers in the treaty of Vienna of 1815। The Bourbon dynasty, which had been deposed during French Revolution, was restored to power। पहला पॉइंट इसमें है बर्बन डायनास्टी ये जो लुई 16 थे, रिमेंबर द लुई 16 बिलोंग टू द बर्बन डायनास्टी, गॉट इट। सो बर्बन डायनास्टी विच रूल्ड इन फ्रांस वाज, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो इनको हटाया गया था वॉज रीस्टोर टू पावर, इसको सबसे पहले इन्होंने पावर में किया।
गॉट इट? दूसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज ही रिमेंबर करने हैं. France lost the territories it has annexed under and France lost the territories it has annexed under Napoleon. उन्होंने कहा, बर्बन डायनेस्टी ने कहा भैया हम तो वापस राजा बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा आप राजा बन जाइए, लेकिन आपके जो नेपोलियन है उन्होंने हमारी टेरिटरी ली है. तो उन्होंने कहा ठीक है वापस ले लो, टेक बैक ऑल दोस टेरिटरीज, आई वांट टू बिकम द किंग. किंग ऑलवेज वांट्स टू बी द किंग. इट्स सच अ प्रिविलेज टू बी अ किंग. कौन नहीं बनना चाहेगा? So he gave back all those territories to the powers जिन्होंने इनको वापस से किंग बनाया था, उनको वापस दे दिया. So France has lost the territories it has annexed under Napoleon. France lost the territories it had annexed under Napoleon. कितनी जगह इन्होंने कैप्चर की थी? ऑल दीज प्लेसेस विच दे हैड कैप्चर्ड अंडर नेपोलियन, वो उनको वापस करना पड़ा. ओके. सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. फ्रांस में क्या था ना कि द वे नेपोलियन हैड कैरिड ऑन हिज पावर ना, सारे लोग बहुत डर गए थे. तो क्या किया, फ्रांस एंड इट्स बाउंड्री वॉज टोटली, पूरे फ्रांस की बाउंड्री की ना इन्होंने घेराव कर दिया. दे जस्ट घेराउड ऑल दैट बाउंड्री लाइन, कि अब फ्रांस से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी. सो टू स्टॉप द फ्रेंच एक्सपेंशन, सोचो ट्रीटी ऑफ वियना में मिलके, आई मीन दे हैव साइंड दिस ट्रीटी जस्ट टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस. फ्रांस का एक्सपेंशन रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया था, टू स्टॉप द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. सो टू स्टॉप द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, series of states were established on the boundaries of France. Now, when you see the map, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी. तो इन्होंने क्या किया, नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम था, नॉर्थ में नीदरलैंड एंड बेल्जियम वाज एस्टैब्लिश्ड, and Belgium was set up in the north. Genoa was added to Piedmont in the south. साउथ में जेनेवा का एक स्टेट बना एंड बेल्जियम बना नॉर्थ में. प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट. प्रशिया को जो है सारी टेरिटरीज, वेस्ट में जितनी भी टेरिटरीज थी ना वो सारी टेरिटरीज दे दी गई. एंड इन द ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली. पूरा इटली जो है नॉर्थ पार्ट वो पूरा कंट्रोल करना था ऑस्ट्रिया को. लेकिन 39 जर्मनी का जो 39 स्टेट्स जो बनाया था ना, रिमेंबर द 39 कॉन्फेडरेशंस दैट वाज मेड बाय नेपोलियन, उसको उन्होंने टच नहीं किया. दे सेड नहीं, इसको इसी तरह से रहने दो, लेट इट बी द वे इट इज. गॉट इट? तो अब देखो कि फ्रांस को हाउ दे आर ट्राइंग टू स्टॉप फ्रेंच एक्सपेंशन. Got it? ये French expansion will be continuing in the next class also. I just wanted to show you the map. Come, let's see the map. So students, I just wanted to show you the map because France had expanded its boundaries on a very fast pace after coming of Napoleon. So up when the rulers, French rulers, when the all Britain, Russia, Austria, Prussia, all these kingdoms when had got freedom from Napoleon's rule,
नेपोलियन के तरीके से उन्होंने कहा अब रूल नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, दे बाउंड्री फ्रांस। ये फ्रेंच मैप देख लीजिए आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस मैप। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इन द नॉर्थ नीदरलैंड, बेल्जियम वॉज ऑल्सो एडेड, देन यू हैव इन द साउथ, ये देखिए दिस इज द इटालियन पोर्शन, दिस वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, ये देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को कहा गया इधर से किसी को एक्सपैंड मत करने देना। एंड यहाँ पे आप देखिए ऊपर में वेस्टर्न साइड में देयर वॉज प्रशिया, उन्होंने कहा कि ये फ्रांस का एक्सपेंशन जो है इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। फ्रेंच एक्सपेंशन मतलब फ्रांस के लोग खाली फ्रांस में ही रहें, पूरी दुनिया में फैलने की ज़रूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विद दैट काइंड ऑफ अ माइंड सेट फ्रेंच पीपल हैड टू कॉम्प्रोमाइज विथ मेनी थिंग्स, जो आगे चल के हमको और पता चलेगा। गॉट इट चिल्ड्रन? दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू. Okay children, we'll meet in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.